Hello everyone. In this lecture, we delve deep into Act 4 of Shakespeare's King Lear, which is a pivotal section of the play that intricately weaves together the themes of suffering, redemption, loyalty, and the relentless forces of the fate. Act 4 marks a crucial turning point where the tragic consequences of the character's action begin to unfold in profound and irreversible ways. Lear's journey from madness to a tragic epiphany, Gloucester's heartbreaking realization, and the relentless manipulation by figures like Regan and Edmund all converge, setting the stage for the inevitable climax. So, this act not only highlights the moral and existential struggles of the characters but also underscores Shakespeare's exploration of power, dynamics, familiar loyalty, and the human condition. Through a detailed examination of the themes, motives, and pivotal quotes, this lecture will offer an advanced understanding of how Act 4 functions within the broader narrative by King Lear. By analyzing the intricacies of each scene, we aim to uncover the psychological depth of Shakespeare's characters and the dark, unforgiving world they inhabit. So, King Lear Act 4 is about it's a profound turning point in the play where the consequences of betrayal, madness, and the collapses of natural and political order reach their most devastating depths. Characters who were once powerful are now reduced to the barest condition of humanity, like Lear, and those who were wronged begin their path towards redemption or tragic confrontation, like Gloucester. This act explores the aftermath of chaos unleashing in the earlier acts. So Lear's madness deepens but paradoxically leads him towards a bitter kind of wisdom. Gloucester, now physically blinded, sees the truth more clearly than ever before. Edgar continues his painful journey of disguise and self-preservation of as Tom, to poor Tom. Cordelia finally re-entered the narrative, bringing hope and compassion into the otherwise bleak world. Meanwhile, Goneril, Regan, and Edmund's political games grow more vicious and destructive. So the entire act captures the emotional and moral collapse of the old world order and struggle for dignity and meaning in the devastated universe. So Act 4 में there is a breakdown ऑफ ट्रेजेडी एंड इमोशनल जो अपने पीक पर पहुंचता है. लियर अपनी मैडनेस के फुल स्टेज में दिखाई देता है यहाँ पर. ग्लॉसेस्टर अपनी फिजिकल ब्लाइंडनेस के बाद भी फिजिकल ब्लाइंडनेस के बाद ही इनर साइट पाता है. सो द थीम्स ऑफ बिट्रायल, सफरिंग, रिडेम्पशन एंड ह्यूमन फ्रेलिटी डोमिनेटेड हेयर. तो नंबर ऑफ सीन यहाँ पर 7 है. ये भी एक बड़ा एक्ट है. सीन 1 इज़ अबाउट ग्लॉसेस्टर डिस्क्राइब हिज पेन. एडगर जो है अपने फादर को बचाने का प्लान बनाता है पुअर, और उसी के लिए पुअर टॉम का डिस्गाइज कंटिन्यू करता है. सीन 2 में गॉनरल और एडमंड का अफेयर दिखाया जाता है. इवन एल्बनी को गॉनरल का ईविल नेचर पता चल जाता है और उसको उसके अफेयर के बारे में पता चलता है और वो उससे बहुत ही नाराज़ हो जाता है. सीन 3 इज़ अबाउट फ्रेंच आर्मी जो कॉर्डेलिया के साथ आती है इंग्लैंड में लियर को बचाने के लिए. सीन 4 में कॉर्डेलिया अपने फादर लियर को ढूंढ रही होती है. लियर नेचर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है उसमें. सीन 5 में रीगन एडमंड को अपना बनाना चाहती है बट
उसे पता चलता है कि भाई गॉनल का ऑलरेडी कुछ उससे है, तो वो उससे राइवलरी बना लेती है अपनी ही बहन से। सीन 6 में ग्लॉसेस्टर और एडगर की एक इमोशनल जर्नी दिखाई गई है, और किंग लियर की और ग्लॉसेस्टर की ट्रैजिक मीटिंग होती है। लियर से सीन 7 में लियर कॉर्डेलिया जो है वो लियर से मिलती है, मतलब लियर को कॉर्डेलिया के कैंप में लेकर आया जाता है, और यहाँ पर लियर और कॉर्डेलिया का एक इमोशनल रीयूनियन होता है। तो दिस इज़ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस एक्ट, इसलिए मैंने इसका यहाँ पिक्चर लगाया है। अगर हम की मूवमेंट्स की बात करें, सो पहला है यहाँ पर सफरिंग इंटेंसिफाई। सो ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर फेसेस पर्सनल सफरिंग्स which are physical, emotional and spiritual. Second one is recognition and reversal. So Gloucester recognizes his mistake. Even also Lear recognizes his humanity. Rise of compassion. Cordelia's love stands out as a stark contrast to the cruelty around. Political tragedy, it's like new alliances and betrayals begin to surface with Edmund playing a central role. Edmund को हम यहाँ इस प्ले में एक्चुअल विलन बोल सकते हैं, बिकॉज ही इज़ द मैनिपुलेटर। सबसे बड़ा मैनिपुलेटर यही है। मेजर थीम्स यहाँ पर हैं जो आपको पूरे प्ले में हर एक एक्ट में हर एक सीन में इस एक्ट के हर एक सीन में देखने को मिलेगा। ब्लाइंडनेस एंड साइट, ये लिटरल भी है, मेटाफोरिकल भी है। मैडनेस एंड इनसाइट भी है, रिडेम्पशन थ्रू सफरिंग भी है। नेचुरल वर्सेस द सोशल ऑर्डर एंड लॉयल एंड बिट्रायल। सो अगर हम टोन की बात करें, एक्ट 4 का टोन, सो इट बिकम्स even more tragic and somber, but with faint glimmer of hope through Cordelia's return and Edgar's persistence. Shakespeare balances the darkness with the moments of tenderness and profound human resilience. सीन 1 पे आते हैं। ये एक इसकी जो सेटिंग है वो डेजर्टेड प्लेस की है। इसमें मेन कैरेक्टर्स है ग्लॉसेस्टर, एडगर एज अ पुअर टॉम, ओल्ड मैन जो कि ग्लॉसेस्टर का एक लॉयल सर्वेंट है। तो सीन की शुरुआत में ग्लॉसेस्टर जो है, देखो ये ग्लॉसेस्टर है, इसकी बेचारा अंधा हो गया है, इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इसको काफ़ी इंजरी है। देखो ब्लड भी है इसकी इसमें ना, ये देखो ये ब्लड दिख रहा होगा, तो ब्लड भी है इसकी इंजरी में काफ़ी, मतलब अब इसने अपनी आइज़ को कवर किया हुआ है। तो ये जो सीन है इसकी शुरुआत जो है वो ग्लॉसेस्टर की इमोशनल ब्रेकडाउन से होती है। ग्लॉसेस्टर अपनी बिट्रायल और अपनी फिज़िकल ब्लाइंडनेस का गम कर रहा है कि भाई ये मेरे साथ क्या हो गया। अब उसे लगता है कि दुनिया में जस्टिस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। इवन ग्लॉसेस्टर की इस प्ले में एक लाइन भी है, एज फ्लाइज टू वॉन्टेड बॉयज आर वी टू द गॉड्स द किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दुनिया के क्रूअल और इनडिफरेंट नेचर को, मतलब दुनिया का यहाँ पर क्रूअल और इनडिफरेंट नेचर दिखता है। जैसे लड़के मक्खियों के साथ खेलते हैं, इसमें मतलब इस लाइन का मतलब है एज फ्लाइज टू वॉन्टेड बॉयज़ आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। जैसे लड़के मक्खियों के साथ खेलते हैं वैसे ही देवता हम इंसानों के साथ खेलते हैं। मतलब वो अपने इस फेट को, मतलब इसके साथ जो इतना बुरा हुआ है इसको ये अपनी डेस्टिनी मान रहा है, अपना फेट मान रहा है कि मतलब किस्मत में यही था और भगवान हमारे साथ खेलते हैं। सो इस पॉइंट पर भी एडगर भी स्टेज पर है, ये पुअर टॉम बना हुआ है। मतलब ये एडगर भी अब स्टेज पर है, अपने फादर की प्रॉब्लम को, उसके सफरिंग को देख रहा है, बट वो अभी भी पुअर टॉम के डिस्गाइज में है। तो लेकिन वो है तो उसका बेटा ही, वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है ना कि मतलब वो पागल है, वो पुअर है, उसका मेंटली डिसेबल्ड है, वो गया है, वो मतलब डिस्टर्ब्ड है, लेकिन एक्चुअली में तो वो सब ठीक है। तो एडगर यानी कि पुअर टॉम अपने फादर को देखकर इमोशनल हो जाता है, पर अपनी आइडेंटिटी तो वो रिवील कर नहीं सकता। तो ये मोमेंट डीपली मूविंग है। एडगर देख रहा है कि उसका फादर जो कभी बहुत पावरफुल था अब एक ब्लाइंड और थका हुआ आदमी बन गया है। ग्लॉसेस्टर एडगर को अपना गाइड बनाने के लिए कहता है कि भाई तुम मुझे हेल्प करना। तो वो कहता है कि अपनी लाइफ ख़त्म करना चाहता है और पुअर टॉम से कहता है कि उसे किसी क्लिफ पर ले जाकर गिरा दे। तो उसे कहता है मेरे गाइड बन जाओ तुम और मुझे किसी क्लिफ यानी कि किसी पहाड़ी पर ऐसे ले जाकर मुझे वहाँ से गिरा दो ताकि मैं मर जाऊँ।
तो यहाँ ग्लॉसेस्टर का डिस्पेयर और डेथ विश प्रोमिनेंट है, लेकिन एडगर साइलेंटली प्लान करता है कि वो अपने फादर को सुसाइड नहीं करने देगा, उसको बचाएगा। वो उसे छोटी सी जगह से ले जाकर कन्विंस करेगा, मतलब छोटी सी जगह पे ले जाएगा और कन्विंस कर लेगा कि भाई हाँ तुम गिर गए हो क्लिफ से, लेकिन तुम बच गए हो, मतलब अभी ये ही तुम्हारी डेस्टिनी कि तुम्हें अभी और जीना है। तो मतलब वो उस छोटी सी जगह से ले जाकर कन्विंस करेगा कि वो क्लिफ से गिर गया है, जबकि असली में नहीं करेगा। तो अगर हम थीम्स की बात करें एक्ट 1 की, तो पहला है ब्लाइंडनेस एंड इंसाइट। तो ग्लॉसेस्टर की फिजिकल ब्लाइंडनेस उसकी पुरानी मॉरल ब्लाइंडनेस को सिम्बलाइज़ कर रही है यहाँ पर। पहले वो अपने सच्चे बेटे एडगर को नहीं पहचान पाया था, और अब जब वो फिजिकली ब्लाइंड है तब उसे सच्चाई का एहसास हो रहा है। रियल विजन कम्स थ्रू नॉट थ्रू द आइज़ बट थ्रू इनर अवेयरनेस। तो यहाँ पर ये बहुत फिट बैठती है लाइन कि जो रियल विजन होती है ये आँखों से नहीं आती है, ये तो हमारी इनर अवेयरनेस से आती है। अगला है फेट एंड द गॉड्स इन डिफरेंस। तो यहाँ पर सिस्टर का कहना है कि हम तो बस खेल की चीज़ें हैं, जैसे मैंने वो लाइन बताई थी ना आपको, फ्लाइज टू वांटेड बॉयज़, कि वो ये कहना चाह रहा है कि हम बहुत ही हेल्पलेस हैं अपने फेट के आगे। मतलब ह्यूमंस का फेट उन्हें हेल्पलेस बना देता है, वो सिर्फ एक पपेट की तरह हो जाते हैं, उन्हें सिर्फ एक्शन करना पड़ता है जैसे जैसे डेस्टिनी में लिखा होता है उस हिसाब से। मतलब वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उनका फेट है, अगर गॉड उनके साथ खेलना चाहता है तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत हेल्पलेस है। तो शेक्सपियर ने यहाँ पर अपने एग्जिस्टेंशियल थीम्स को टच करते हैं कि दुनिया अनजस्ट और आर्बिट्रेरी है, कि मतलब यहाँ पे सिर्फ इनजस्टिस है, प्लस यहाँ पर कोई भी ऐसा मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है, और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे फेट, हमारी हमारी डेस्टिनी में जो भी लिखा होगा वो हमको झेलना ही पड़ेगा। अगला है सफरिंग एंड रिडेम्पशन। तो ग्लॉसेस्टर का इंटेंस सफरिंग उसके कैरेक्टर को रिडीम करता है। दुख के मीडियम से वो अपनी गलतियों को समझता है। नेक्स्ट है लॉयल्टी एंड फिलियल ड्यूटी। देखिए फिलियल होता है, इट्स काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स। बच्चे और उनके माता पिता के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है, एक ड्यूटी होती है, उसको हम फिलियल ड्यूटी बोलते हैं। तो ये वाले थीम से हमें एडगर का जो कैरेक्टर है उसका दिखता है कि एडगर का अपने फादर के लिए सेक्रीफाइस और लॉयल्टी सीन में शाइनिंग एग्जाम्पल है। एडगर की लॉयल्टी यहाँ साइलेंट है, वो अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा कर अपने फादर की रक्षा कर रहा है। उसके फादर सुसाइड करना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, तो वो उसमें भी अपने फादर के अच्छे के लिए सोच रहा है और अपने फादर को बचाने के लिए सोच रहा है। अगर हम मोटिव्स की बात करें तो डिस्गाइज एंड आइडेंटिटी। एडगर का पुअर टॉम का डिस्गाइज यहाँ क्रूशियल है। डिस्गाइज के थ्रू शेक्सपियर ये दिखाते हैं कि सच और झूठ, असली और नकली का फ़र्क कभी सरफेस पर नहीं दिखता है। अगला है डार्कनेस एंड लाइट। तो ग्लॉसेस्टर फिजिकली और मेटाफोरिकली अंधेरा देख रहा है, लेकिन अंधेरा यहाँ पर इग्नोरेंस, सफरिंग और डिस्पेयर का सिंबलाइज करता है। और जो लाइट आनी, यानी कि जो एडगर का सच रिवील है, वो तो भी दूर है। सो डार्कनेस एंड लाइट, मतलब अभी जो उसको भी पता नहीं है ना कि उसका बेटा कहाँ है, तो वो डार्कनेस है, अंधेरा है। और लाइट ये है कि अभी उसको पता चल रहा है कि उसका बेटा कहीं नहीं गया, उसके पास ही है। मैडनेस एंड रीज़न। तो इस सीन में एडगर थोड़ा कंट्रोल्ड मैडनेस का रोल प्ले करता है, जबकि ग्लॉसेस्टर की डिस्पेयर रीज़न का लॉस दिखाता है। तो दिस इज़ अबाउट थीम्स एंड मोटिव्स। अब हम बात करते हैं कुछ की कोड्स की। तो आपको ये वाली जो लाइन है फर्स्ट सीन में 36 से लेकर 37 लाइन पर मिल जाएगा। ग्लॉसेस्टर अपनी ब्लाइंडनेस के बाद कहता है, वही जो मैंने लाइन पहले डिस्कस की थी, एज फ्लाइज टू वॉन्टेड बॉयज़ आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। स्पोर्ट मतलब अपने खेल के लिए, मतलब वो हमको जैसे बच्चे मक्खियों से खेलते हैं, ऐसे ही भगवान हमें मार देते हैं अपने स्पोर्ट के लिए। तो ग्लॉसेस्टर एक्सप्रेसेस हिज डिस्पेयर एंड सेंस ऑफ पावरलेसनेस आफ्टर बीइंग ब्लाइंडेड बाय रीगन एंड कॉर्नवॉल। ही कंपेयर्स ह्यूमन टू द फ्लाइज, दैट चिल्ड्रन किल फ्लाइज फॉर फन, suggesting that the gods or the fate are indifferent to human
human sufferings and that life is just a cruel game for them. This line explores the theme of fate versus free will. तो यहाँ पर भी एक थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेट वर्सेस फ्री विल, कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी फेट हमें इतना ज़्यादा हेल्पलेस कर रही है कि हमारी फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं है. एंड इट इंडिकेट्स दैट ह्यूमंस आर हेल्पलेस इन द फेस ऑफ हायर पावर्स. ठीक है. नेक्स्ट है जो कि एडगर साइड में बोलता है, ये 26 नंबर पे ये लाइन मिल जाएगी आपको. ओ गॉड्स हु इज इट कैन से आई एम एट द वर्स्ट. तो इस लाइन में ना एडगर रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सट्रीम सफरिंग दैट हिज फादर ग्लॉसेस्टर इज एंड्योरिंग. वो अपने फादर की सफरिंग पर लेके बड़ा दुखी, क्योंकि कैसे कह सकता है कि मैं ही वर्स्ट हूँ, ये कहता है ना ग्लॉसेस्टर अपने आप को. सो ही वॉन्डर्स इफ एनी वन कैन ट्रूली क्लेम दैट दे आर एक्सपीरियंसिंग द वर्स्ट एज लाइफ इज फुल ऑफ अनफॉरसीन कैलेमिटीज. सो दिस मोमेंट रिफ्लेक्ट्स द थीम of endurance and resilience, suggesting that life can always get worse, but one must continue enduring. Edgar's sympathy for his father's plight is evident here. So next में ग्लॉसेस्टर एडगर से कहता है, I stumbled when I saw, ये 19 नंबर की लाइन में है ये. So here Gloucester's blindness becomes both literal and metaphorical here. अब तो सच्ची में अंधा हो गया, मेटाफोरिकली तो था ही बेचारा अंधा, वो तो शुरू से ही अंधा था, ये लाइकली है. सो ही एक्सप्रेसेस दैट हिज ग्रेटेस्ट मिस्टेक्स वॉज सीइंग, मीनिंग दैट हिज ब्लाइंडनेस इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ लिबरेशन. ही एक्नॉलेजेस दैट ही हैड बीन ब्लाइंड टू द ट्रुथ ऑफ हिज सन्स एक्शन, पर्टिकुलरली एडमंड्स बिट्रायल. वो अपने दोनों बेटे के केस में ही अंधा था. उसे एडगर की सच्चाई नहीं दिखी, उसे एडगर की लॉयल्टी नहीं दिखी, और एडमंड का उसे बिट्रायल नहीं दिखा, एडमंड का उसे मैनिपुलेशन कभी नहीं दिखा. ही माइट हैव अवॉइडेड हिज करंट सफरिंग्स. सो दिस कोट अंडरस्कोर्स द थीम ऑफ इनसाइट वर्सेस ब्लाइंडनेस, जो मैं शुरू से पहले एक्ट से एक आपको थीम बार और बता रही हूँ, ब्लाइंडनेस वर्सेस इनसाइट, उसका ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. So this quote underscores the theme of insight versus blindness, where physical blindness represents a deeper metaphorical blindness to the truth. Next है आपका ये ग्लॉसेस्टर का ही डायलॉग है, The king is a lost and forsaken man. So here Gloucester speaks about King Lear's condition, which mirrors his own. दोनों की कंडीशन एक जैसी है, मिरर करती हैं दूसरे को. बोथ आर बिट्रेड, डिसरेस्पेक्टेड, बोथ आर अबेंडेंड बाय दोज दे लव. ग्लॉसेस्टर्स रिकॉग्निशन ऑफ लियर्स प्लाइट reinforces the theme of betrayal, suffering of the nobility. So Gloucester's, though physically blind, sees clearly the pain Lear has been going through, which contrasts with his earlier blindness to his own son, Edgar's loyalty. So this line emphasizes the parallel suffering of both Lear and Gloucester, reflecting their tragic fall from grace. It also aligns with the motif of blindness in the play, where characters often fail to see the truth until it's too late. So this line is very important. It represents Gloucester as well as King Lear's condition. नेक्स्ट जो कोट है ये आपको 51 लाइन पे मिल जाएगी. So Edgar जो still he is disguised as a poor Tom, ये कहता है poor Tom's are cold. बहुत important है ये. So this line is repeated throughout the scene. पूरे scene में बोलता है ये बार बार. And it plays a crucial role in highlighting Edgar's transformation into poor Tom. Edgar is pretending to be a mad and homeless, living as a beggar. So the repeated line emphasizes the motive of madness and disguise. जो motive मैंने आपको बताया था ना, madness and disguise, ये इसको represent करता है. Two central element of the play. ये दो central element है, madness और disguise. तो ये दोनों को represent कर रहा है. Edgar's apparent insanity allows him to witness the world in a way that others cannot, which aligns with the theme of the hidden truth.
His outward madness is a mask for his true identity and loyalty. As a deeper level, this line also reflects the human condition, which is एडगर इज़ enduring suffering both physical and emotional. फिज़िकल ये है कि बेचारे को गरीब बन के पागल बन के रहना पड़ रहा है, पुअर बन के रहना पड़ रहा है, और इमोशनल ये है कि वो उसके फादर उसके सामने काफ़ी बेकार कंडीशन में है, ना उसके फादर, और उसको वो सब झेलना पड़ रहा है इमोशनली. वो बहुत ही टूट चुका है अपने फादर को ऐसे बुरी कंडीशन में देख के, एंड ही इज़ ट्राइंग टू इंड्योर हार्डशिप विथ लिटिल कम्फर्ट. ठीक है, आगे है सीन 2. ये गॉन्ड्रिल के पैलेस में है. सो द सेटिंग ऑफ द एक्ट फॉर scene 2 of King Lear is crucial in understanding the dramatic tensions of the play. The scene primarily takes place in Gondrel's palace. It's an interior space that represents the political and emotional landscape of the characters involved. तो यहाँ कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें सेटिंग को समझना चाहिए. ये गॉन्ड्रिल का पैलेस है. सो दिस लोकेशन हाईलाइट्स इंक्रीजिंग द टेंशन बिटवीन Gondrel and her sister Regan, as they are now in conflict over who should have control of the kingdom and over their father, King Lear. So Gondrel's palace, where she resides with her husband Albany, becomes a symbolic setting for her own desire for power and control. तो ये जो जगह है ना, ये काफ़ी मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट की जगह हो गई ये दोनों बहनों में कि भाई कौन किंगडम पे उनके फादर पर कंट्रोल करेगा, किसके पावर किससे ज़्यादा होगी. सो गॉन्ड्रिल का पैलेस जो है वो एक पॉलिटिकल हब भी है वेयर अलायंसेज एंड राइवलरीज टेक शेप. द पैलेस इज़ it's not only a physical location but also a place where political machinations take place. The dynamics in this space reveals how Gondrel and Regan are joking for influence, particularly in their treatment for King Lear and Albany. It's a private space. जो प्राइवेट सेटिंग है इस पैलेस की, इट एम्फसाइजेस द पर्सनल एंड फैमिलियल कॉन्फ्लिक्ट दैट एग्जिस्ट द ब्रॉडर एंड पॉलिटिकल सेंसेस political struggle. So this scene that the scenes that unfolds here deal not just with political power but familial betrayal, personal ambition and breakdown of relationship. ये एक इमोशनल लैंडस्केप भी है क्योंकि जो इसका जो ये सेटिंग है ना सीन का, उसमें एक ज़्यादा मतलब ये ऐड करता है इमोशनल वेट टू द एक्शन दैट ट्रांसफायर. और यहीं पर ही गॉन्ड्रिल और रीगन का टेंशन भी क्रिएट होता है over their father, and each other can be felt through the setting, which functions are a reflection of their internal emotional state. So the palace becomes a battleground not just for political control but for characters' emotional survival as well. So overall act 4 का जो scene 2 है is set in Gondrel's palace where power struggles and internal family tensions take center stage. The setting plays a crucial role in unfolding drama, mirroring the moral, political decay within the play. तो अगर हम ओवरव्यू बात करें इसके सीन 2 की, तो पॉलिटिकल एंड फैमिलियल स्ट्रगल यहाँ पर कंटिन्यू होता है, particularly between Gondrel, Regan and their respective power dynamics. The scene primarily revolves around Gondrel and Regan and Albany as they navigate their complicated relationship with each other. Gondrel and Regan's rivalry evident as they both compete for power, particularly with the divided loyalty towards their father Lear and the forces they are allied with. While Gondrel has already grown more domineering, Regan's own desire for control also become evident. Albany जो गॉन्ड्रिल का हस्बैंड है वो भी उसकी भी अवेकनिंग हो गई है, वो भी क्वेश्चन कर रहा है मॉरल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में कि वो जो दोनों बहनें कर रही हैं उसका मॉरल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है. जो वो लाइंस बोलता है सीन में वो सजेस्ट करता है कि भाई वो that he is torn between his loyalty and to his wife and his growing realization of the moral decay around him. So in this scene there is a significant
which focus on how power and betrayal play out within the family structure. The conflict between Goneril and Regan further deepens as each sister tries to outdo the other in terms of gaining power and control over Lear's divided kingdom. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीन 2. थीम की अगर हम बात करें तो बिट्रायल एंड ट्रेजरी पहला है इसमें. गॉनरिल का जो बिट्रायल है ऑफ हर फादर एंड हर ट्रीटमेंट ऑफ हर हस्बैंड एल्बिनिया सेंट्रल इन द सीन. बोथ सिस्टर्स हैव बिट्रेड लियर एंड नाउ दे ऑल्सो बिट्रे ईच अदर. गॉनरिल का जो डिज़ायर है टू सिक्योर हर पावर इवन एट द एक्सपेंसेस ऑफ हर सिस्टर्स रिफ्लेक्ट द नेचर ऑफ बिट्रायल दैट रन्स थ्रू द प्ले. गॉनरिल और रीगन दोनों की राइवलरी शो करती है कि बिट्रायल जो होता है वो कितना रूटेड होता है इन द थर्स्ट फॉर पावर, कि वो किसी को नहीं छोड़ता. पहले इन दोनों ने मिलकर अपने फादर को बिट्रे किया, अब दोनों आपस में बिट्रे कर रही हैं एक दूसरे को. ईच सिस्टर्स एक्शन हाईलाइट द ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिट्रायल विच इज़ अ थीम दैट परमीट्स थ्रू आउट द प्ले. सेकेंड है यहाँ पर पावर एंड एम्बिशन. So Goneril and Regan both exhibit ruthless ambition. Goneril particularly seeks to consolidate power, first by manipulating Lear and now undermining her own sister Regan. The constant joking for power between the two sisters shows the destructive force of unchecked ambition. So Albany is beginning to question the nature of the power struggle around him. His internal conflict suggests that he recognizes the moral cost of this pursuit of power and dominance. Next, appearance versus reality. तो ये भी एक stark contrast है between appearances and reality throughout the scene. The outward show of family loyalty is juxtaposed with the reality of treachery and manipulation. Goneril's affection for her sister Regan is superficial, and Albany's apparent loyalty to his wife contrast with his growing sense of guilt and moral awakening. तो यहाँ पर ना इसी सीन से एल्बनी बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ जाता है कि उसकी वाइफ जो है बहुत गलत किया उसने. सो दिस थीम ऑल्सो intersects with the theme of false authority, as the characters involved in the political struggle like Goneril, Regan and Albany all wield power that is either obtained through deceit or carried with deep internal conflict. Their power is based on lies and deceit, and which only deepens the corruption in the kingdom. Next है यहाँ पर moral conflict and internal struggles. सो एल्बनी रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का. उसके बीच में ना उसके मन में ना एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में इंटरनली कि क्या मॉरली राइट है और क्या गलत के साथ साथ, मतलब गलत तो है ही लेकिन पॉलिटिकली एडवांटेजियस भी है. मतलब उसके बीच उसके अंदर उसके मन में जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ये है कि क्या मॉरली राइट और क्या पॉलिटिकली एडवांटेजियस है. His growing awareness of the corruption around him puts him in a precarious position. बहुत ज़्यादा गिल्ट में. His struggle with ethical decision reflects the overarching conflict between justice and power in the play. The moral dilemmas faced by Albany and the betrayal from more daughters emphasize the lack of integrity in the realm of the politics and family, suggesting that honor and justice are continually sacrificed इन परसूट ऑफ पावर. अगर हम नेक्स्ट की बात करें फैमिली एंड लॉयल्टी, सो फैमिली जो है वो तो सेंट्रल है सीन में. एज द रिलेशनशिप बिटवीन Goneril, Regan and Albany are tested, the breaking of these familial bonds highlights that fragility of loyalty and personal ambition can destroy familial trust. This highlights the play's exploration of the disintegration of family structure as a result of betrayal, ambition and the breakdown of morality. Last इसमें है the corruption of power. So the power in the play corrupts the characters. We see that clearly in this scene. Goneril and Regan, जो कि इन्होंने शुरू में ये एक साथ थी जब ये अपने फादर को बिट्रे कर रही थी, अपनी बहन को मतलब इन्होंने बैनिश करवा दिया, लेकिन अब क्या है ये अपने
एक दूसरे के ही अगेंस्ट हो गई, क्योंकि जो इनकी थर्स्ट है ना, जो इनकी हंगरनेस है पावर के लिए, वो बहुत ज़्यादा है. It blinds them, actually. The thirst for power blinds them to basic human decency, and they justify their action for the sake of self-interest. एलिबनी का जो moral awakening है सीन में, it suggests that power has a corrupting influence, but the moment of self-realization might not come soon enough to rectify the damage that has already been done. अगर हम मोटिव्स की बात करें तो कन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल फॉर पावर, ये पहला मोटिव है इसका. ये जो गॉनरिल और रीगन में एक कंपटीशन है, ये इस सीन में प्रोमिनेंट हो जाता है. इनका जो स्ट्रगल है फॉर डोमिनेंस स्पेशली ओवर लेयर्स किंगडम, ये सिम्बलाइज करता है कि ब्रॉडर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफ़ी है इस प्ले में. पावर स्ट्रगल जो है वो सरफेस करता है इनके इंट्रैक्शंस में, इनके अपने मतलब अपने अपने हस्बैंड से जो ये बातें करती हैं, वेयर दे ट्राई टू मैनिपुलेट अदर टू सिक्योर देयर पोजीशन एंड गेन अपर हैंड इन द बैटल ऑफ पावर. मतलब ये दोनों ही बहनें अपने अपने हस्बैंड से इस बारे में बातें करती हैं कि भाई हमें किस तरह से अपनी बहन को, जैसे रीगन बात कर रही है अगेंस्ट गॉनरल बात कर रही है अगेंस्ट रीगन, कि मैं किस तरह से उससे ऊपर हो सकती हूँ, उससे ज़्यादा पोजीशन पा सकती हूँ. अगला है ब्लाइंडनेस एंड परसेप्शन. एज विद मैनी सीन्स इन किंग लेयर, ब्लाइंडनेस जो है वो तो लिटरल भी है और मेटाफोरिकल भी है. वो तो क्रूशियल मोटिव है ही हर एक एक्ट में, हर एक सीन में. लियर का ओन ब्लाइंडनेस जो है, लियर्स ओन ब्लाइंडनेस टू द ट्रू नेचर ऑफ हिज डॉटर्स इज मिरर्ड बाय द इमोशनल and moral blindness of Gondrel and Regan. So they both, while seeing their action as necessary for power, they are blind to the emotional and ethical implications of their cruelty. Third है revenge and justice. जो थीम है रिवेंज का वो कंटिन्यू होता है, क्योंकि जो गॉनरल और रीगन है एंड द अदर सीक रिट्रीब्यूशन फॉर परसीव्ड स्लाइट बोथ पर्सनल एंड पॉलिटिकल. इनका जो परस्यूट है रिवेंज का, वो ओवर शेडो करता है किसी भी सेंस के जस्टिस को, रिफ्लेक्ट करता है कियोटिक वर्ल्ड को, जिसमें रिवेंज जो है वो डोमिनेंस फोर्स की तरह सर्व होता है रादर देन फेयरनेस और मॉरल राइट. जस्टिस यहाँ पर क्वेश्चन होती है एज अ करेक्टर्स नेविगेट बिटवीन वॉट दे फील इज़ राइट एंड वॉट इज़ अल्टीमेटली डिस्ट्रक्टिव टू द किंगडम एंड देयर ओन फैमिली. अब यहाँ पर एक नया थीम आया है, नया मोटिव आया एक्चुअली, जो पहले अभी तक नहीं आया. वो ये था sisterhood and rivalry. So the rivalry between Gondrel and Regan intensifies throughout the scene. They are both equally ruthless in their quest for power, but their constant scheming against one another also emphasize the fragility of relationship when ambition is at the forefront. Sisters का जो bond है वो भी यहाँ पर खतरे में है. मतलब फादर के किंगडम पर ज़्यादा कंट्रोल पाने के लिए सिस्टरहुड ख़त्म हो गया है और राइवलरी आ गई है. लास्ट इसमें है ब्रेक डाउन ऑफ द सोशल ऑर्डर. द फ्रैक्चरिंग ऑफ फैमिली बॉन्ड्स एंड moral decay in King Lear reflects the breakdown of social order. As the sisters rebel against their father and challenge their marriage alliances, they contribute to disintegration of the kingdom, mirroring the overall collapse of order in the state. So अगर हम पूरे सीन 2 की बात करें तो जो यहाँ पर थीम है बिट्रायल का, पावर का, करप्शन का, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट का, वो बहुत ही पावरफुली एविडेंट होता है. कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू सिस्टर गॉनरल एंड रीगन इज इंटेंसिफाई है. देयर मैनिपुलेशन एंड पॉलिटिकल जो उनका एजेंडा है एक्सपोज करता है डिस्ट्रक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस को, जो कि उनका बहुत अनचेक्ड एम्बिशन है. एल्बनी का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और गॉनरल का जो अनरिलेंट डिज़ायर है कंट्रोल करने की, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. अल्टीमेटली द ट्रैजिक अनरेवलिंग ऑफ फैमिलियल एंड सोशल बॉन्ड्स हाईलाइट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ पावर, एम्बिशन, बिट्रायल विच आर द सेंट्रल टू प्लेज नरेटिव. अब हम की कोट्स की बात करते हैं हम, तो इसी सीन में 38 और 39 लाइन पर ये आपको कोट मिल जाएगी, जिसमें एल्बनी जो है ना, एल्बनी ये गॉनरल की इविल नेचर को क्रिटिसाइज़ कर रहा है. कह रहा है विजडम एंड गुडनेस टू द वाइल्ड सीम वाइल्ड फिल्स
सेवर बट देमसेल्व्स। तो एल्विनी यहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई इंसान खुद करप्ट होता है ना, तो उसको अच्छाई और समझ भी बुरी लगती है। मतलब अगर आप बुरे हो तो आपको अच्छी चीज़ कभी भी अच्छी लगी ही नहीं। तो ये गॉन्ड्रिल और उसके जैसे लोगों को का करप्शन का पॉइंट करती है। मतलब यहाँ पर ये गॉन्ड्रिल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करके कह रहा है कि तुम इतनी बुरी हो कि तुम्हें अच्छाई और समझदारी, मतलब समझदारी, तुम बड़ी बहन हो, तुम मतलब, तो ये तो खैर एल्डर सिस्टर है ना, बिल्कुल तुम बड़ी बहन हो और तुम लेकिन तुम क्या हो, तुम करप्ट हो। तो अच्छाई और समझ तुम्हें बुरी लगती है, मतलब तुम बहुत ज़्यादा करप्ट हो, करप्शन में तुम पूरी पूरी डूबी हुई हो। अब आगे ये जो एल्बनी है ये कर्स करता है गॉन्ड्रिल को। प्रॉपर डिफॉर्मिंग सीम्स नॉट इन द फील्ड सो हॉरिड एज इन वुमन। ये तो कुछ ज़्यादा ही बहुत बुरा बोल रहा है। यहाँ पर एल्बनी जो है गॉन्ड्रिल की इविलनेस को इतना घटिया कह रहा है कि एक शैतान की बुराई भी इतनी घिनौनी नहीं लगती। ठीक है ना, प्रॉपर डिफॉर्मिंग सीम्स नॉट इन द फील्ड, मतलब एक जो प्रॉपर एक जो शैतान होता है ना, मतलब एक प्रोफेशनल शैतान जिसे हम कह देंगे मतलब एक जो प्रॉपर एक शैतान है ना, उसकी बुराई भी तुमसे कम है। मतलब वो इतनी हमें घिनौनी नहीं लगती जितनी बुरी एक औरत की लगती है। मतलब सो हॉरिड एज इन वुमन, मतलब एक औरत का इतना बुरा होना एक शैतान के बुरा होने से कई कई गुना ज़्यादा गंदा है, घिनौना है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा कह दिया इसने इसको। एक मैसेंजर है जो कि अच्छा, इस सीन में ना पता चलता है कि कॉर्नवॉल की डेथ हो गई है और जो उसकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल और एरोगेंट हो गई है। तो ये बात एक मैसेंजर बताता है जो कि ये न्यूज़ लेकर आता है, कॉर्नवॉल की डेथ हो गई है। तो वो कहता है, दिस लेटर मैडम क्रेव्स अ स्पीडी आंसर, इट इज़ फ्रॉम योर सिस्टर। सो मैसेंजर यहाँ के बताता है कि रीगन अब ज़्यादा पावरफुल और अग्रेसिव होती जा रही है और गॉन्ड्रिल के लिए एक थ्रेट भी बन रही है ये। क्यों? क्योंकि पावर डायनामिक्स जो है बिटवीन सिस्टर्स यहाँ और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब वो और ज़्यादा क्रेव्स और स्पीडी आंसर है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। और ये कहीं ना कहीं गॉन्ड्रिल के लिए एक बैड न्यूज़ है। इसलिए नहीं कि कॉर्नवॉल की डेथ हो गई ना, इस वजह से नहीं कि अब वो ज़्यादा ताकतवर हो गई है इसकी बहन, यानी कि अब हो सकता है कि जो इन दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन ज़्यादा किंगडम लेगा, किसका हैंड ऊपर रहेगा, किसके पास ज़्यादा पावर रहेगी, इस वॉर में कहीं रीगन ना जीत जाए। तो जब गॉन्ड्रिल को पता चलता है, मतलब आफ्टर हियरिंग कॉर्नवॉल्स डेथ, तो वो क्या कहती है, वो ये कहती है, ये 85 लाइन पर एक्चुअली, ये वाली जो लाइन है ये आपको 83 से 84 में मिल जाएगी, ये वाली आपको 61 में मिल जाएगी। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, 38 से 39 पर मिल जाएगी। सो ये वाली एक लाइन कहती है जब उसको पता चलता है ना कि भाई कॉर्नवॉल की डेथ हो गई है, तो वो कहती है, वन वे आई लाइक दिस वेल। मतलब गॉन्ड्रिल कनिंगली सोचती है कि अब जब रीगन के हस्बैंड मर गए हैं तो उसके पास अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने का एक नया मौका है। द वन वे आई लाइक दिस वेल, मतलब अब तो बहुत अच्छा मौका मिला है, मतलब ये बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, कि अब वो अपनी पावर को और बढ़ा लेगी। मतलब इसको दुख नहीं हो रहा है कि इसकी सिस्टर के हस्बैंड मर गए हैं, उनकी डेथ हो गई है, इसको इस बात का बुरा नहीं लग रहा है, इसको ये टेंशन हो रही है कि अब तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। सो ये जो सीन 2 है ये एक ट्रांजिशन सीन है जिसमें पॉलिटिकल अपडेट्स और इमोशनल टोन्स दोनों कंबाइन होते हैं। ठीक है, सो ये सीन 2 था एक्चुअली, सॉरी ये सीन 2 था जिसमें हमें ये सब पता चलता है। अब सीन 3 पर आते हैं। ये सीन 3 की सेटिंग है फ्रेंच आर्मी कैंप इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में फ्रेंच आर्मी आ गई है और वो एक उन्होंने कैंप बना लिया है। तो इस सीन में ना, मतलब ये कैरेक्टर्स है लियर, जेंटलमैन, कॉर्डिलिया, मतलब ये मिले नहीं है, लेकिन लियर और कॉर्डिलिया भी मिले नहीं है, लेकिन ये सीन में है। तो ये सीन एक ट्रांजिशन सीन है जिसमें पॉलिटिकल अपडेट्स और इमोशनल टोन्स दोनों कंबाइन होते हैं। सीन फ्रांस के कैंप में है, मतलब फ्रेंच कैंप में है ये। एक मतलब केंट और एक जेंटलमैन के बीच में यहाँ पर बातचीत हो रही है। केंट जेंटलमैन से पूछता है, हाँ यहाँ केंट भी है, ठीक है, ये लिखा नहीं है मैंने, पर केंट भी है यहाँ पर। केंट जेंटलमैन से पूछता है कि लियर किंग है कहाँ, किंग लियर है कहाँ। तो जेंटलमैन उसे बताता है
कि लियर इतना इमोशनल हो गया था जब उसे कॉर्डेलिया के बारे में पता चला कि वो अपने दुख और मतलब कि जो उसकी बेटी है बैनिश होने के बाद भी, डिसइनहेरेंट होने के बाद भी उसको हेल्प करने आ रही है, तो वो अपने दुख में इतना उसको शर्मिंदगी हुई कि वो शर्मिंदगी के मारे आंसू बहा रहा था। तो यहाँ पर कॉर्डेलिया की प्योरिटी और उसकी लॉयल्टी को भी हाईलाइट किया जाता है कि इतना सब होने के बाद भी जब उसे पता चला कि उसके फादर मुश्किल में है, तो वो सब छोड़ छाड़ के अपने हस्बैंड की आर्मी को लेकर यहाँ आ गई। तो कॉर्डेलिया की प्योरिटी और उसकी लॉयल्टी को यहाँ हाईलाइट किया जाता है। उसका ग्रीव देखकर लियर गिल्ट फील करता है कि उसने सबसे वफादार बेटी के साथ सबसे बुरा सलूक किया। जेंटलमैन उसको ये भी बताता है कि मतलब ये जेंटलमैन केंट को ये भी बताता है कि फ्रेंच फोर्सेस इंग्लैंड में इन्वेट करने आई है, ना कि कॉन्क्वेस्ट करने आई है, बल्कि लियर के रिस्पेक्ट और इंसाफ के लिए वो आई है। केंट ये भी बताता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी को, मतलब फिर केंट उस जेंटलमैन को बताता है कि मैं केंट हूँ, मतलब वो रिवील करता है कि मैं केंट हूँ और मैं यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहा था जब तक लियर ठीक नहीं हो जाते। तो ये सीन जो है लियर और कॉर्डेलिया की इमोशनल यूनियन के ग्राउंड वर्क को प्रिपेयर करता है। एकदम नहीं मिलेंगे तो ये 7th सीन में, लेकिन ये जो सीन 3 है, मतलब 7th सीन में ही लोग मिलेंगे, लेकिन सीन 3 से जो ग्राउंड बनाना होता है ना एक, तो यहाँ पर ग्राउंड बनता जा रहा है कि अब कैसे कैसे लियर और कॉर्डेलिया मिलेंगे। तो और फ्रांस का इन्वेजन को जस्ट मॉरल एक्शन के रूप में यह दिखाते हैं। अब हम यहाँ पर थीम की बात करें तो ये फिलियल पिटी है। फिलियल मैंने बताया था आपको, मतलब ये बच्चों का एक फ़र्ज़ होता है टुवर्ड्स देयर पेरेंट्स, मतलब बच्चों चिल्ड्रन की डिवोशन टू देयर पेरेंट्स, उसको फिलियल पिटी बोलते हैं। तो कॉर्डेलिया का लियर के लिए कंसर्न और सेक्रीफाइस यहाँ दिखाया गया है, तो ये फिलियल पिटी है। वो अपनी आर्मी लेकर आई है सिर्फ अपने फादर की रिस्पेक्ट के लिए और उनको जस्टिस दिलाने के लिए, ना कि उसको कोई पावर चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इन्वेड करके, वो वॉर करके किंगडम जीत लेगी और दोनों बहनों को निकाल देगी, नहीं। उसका मोटिव ये है कि वो अपने फादर को जस्टिस दिलाए और उनको उनकी जो डिग्निटी थी, उनका एक रुतबा था, वो उसको वापस दिलाया जाए। नेक्स्ट है रिडेम्पशन एंड फॉरगिवनेस। मतलब रिडेम्पशन का बेसिकली मतलब होता है रिपेंट, पश्चाताप, और फॉरगिवनेस का आपको पता ही है, माफ़ी। तो लियर अपने किए हुए बहुत शर्मिंदा है। उसका गिल्ट और इमोशनल ब्रेकडाउन रिडेम्पशन को दिखाता है कि वो पश्चाताप कर रहा है। पश्चाताप बेसिकली पता है क्या होता है, ये नहीं कि आपने कोई कुछ सिन किया, आपने बदले में कुछ चैरिटी कर दी, भाई चलो मैंने गरीब के साथ कुछ बुरा किया तो मैंने 100 गरीबों को, मतलब गरीबों को खाना खिला दिया, ये रिडेम्पशन नहीं है। जब तक आपके अंदर गिल्ट नहीं है ना, और उस गिल्ट की वजह से आपके अंदर इमोशनल ब्रेक डाउन नहीं होता, जब तक आप खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब मान नहीं लेते ना कि भाई मेरी वजह से हुआ, मैं कैसे खुद को माफ़ करूँ, ये होता है रिडेम्पशन, जिसमें आप गिल्ट में आ जाते हो। जब तक आपके अंदर गिल्ट नहीं आ रहा ना अपनी किसी बैड डीड के लिए, तब तक आप कह ही नहीं सकते कि भाई ये रिडेम्पशन है। तो ये आइडिया शेक्सपियर के प्ले का एक मॉरल सेंट्रल की तरह काम करता है। मतलब शेक्सपियर प्लेज में ये देखने को मिलता है कि बुराई के बाद भी इंसान सुधर सकता है। अगला है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है करुणा। कॉर्डेलिया के एक्शंस पूरे कंपैशन और अनकंडीशनल लव को दिखाता है जो वो अपने फादर से करती है। बल्कि जो गॉनर और रीगन है वो उनका सेल्फिशनेस है। मतलब कॉर्डेलिया का अनकंडीशनल कंपैशन, प्योर कंपैशन लव का कंट्रास्ट यहाँ पर होता है गॉनर और रीगन के सेल्फिशनेस से। नेक्स्ट है लॉयल्टी वर्सेस बिट्रायल। तो केंट को अपनी लॉयल्टी कंटिन्यू रखता है वो डिस्पाइट हार्डशिप्स, और कॉर्डेलिया का लियर के लिए लड़ना ट्रू लॉयल्टी को अंडरलाइन करता है। ये बिट्रायल का एटमॉस्फेयर में भी एक ब्राइट स्पॉट है कि सब लोग यहाँ बिट्रायल में हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग केंट और कॉर्डेलिया जैसे लॉयल्टी दिखा रहे हैं। अगर हम मोटिव्स की बात करें तो टीयर्स एंड वीपिंग। लियर के जो आंसू है, टीयर्स, वो गिल्ट का और रियलाइजेशन का सिंबल है। मतलब ये जो रो रहा है, टीयर दिखा रहा है, रो रहा है, तो वो उसका गिल्ट का और उसके रियलाइजेशन का सिंबल है, मतलब रिडेम्पशन का एक तरीका है उसका। शेक्सपियर यहाँ ये दिखा रहे हैं कि रोने में वीकनेस नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इंडिकेशन है ये। मतलब रोना कोई वीकनेस नहीं है,
अगर आपको लग रहा है बुरा कि आपने कुछ बुरा किया है तो आप रो सकते हैं, ये आपको वीकनेस नहीं दिखाता है, बल्कि ये आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग करता है ये। अगला है साइट एंड ब्लाइंडनेस। इस सीन में लियर लिटरली अपीयर नहीं होते हैं, पर उनका इमोशनल ब्लाइंडनेस अब हील हो रहा है। मतलब वो भी, ग्लॉसेस्टर ने तो एक्चुअल ब्लाइंड होकर अपना ब्लाइंडनेस हील किया, ये बिना ब्लाइंड हुए ही अपने आप को हील कर रहे हैं। वो सच्चाई उन्हें दिखती है जो पहले कभी नहीं दिख रही थी, अब उन्हें सबके असली चेहरे दिख रहे हैं। स्टॉर्म एज अ मेटाफर। सीन 3 में स्टॉर्म डायरेक्टली नहीं है, बट लियर के अंदर अभी भी एक इमोशनल स्टॉर्म चल रहा है, जो उनके, वो स्टॉर्म किस चीज़ का है, वो गिल्ट का है, पश्चाताप का है, और अपने गलत फैसले का है उसको, और इस चीज़ का उन्हें बहुत दर्द है, वह दर्द ही उनका स्टॉर्म है। ये जो सीन है ना, इसका टोन काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी रिफ्लेक्टिव है और होपफुल है। होपफुल क्यों है? क्योंकि अब कॉर्डेलिया आ गई है लियर को रेस्क्यू करने, तो बीइंग ऑडियंस, बीइंग रीडर्स, अब हमारे मन में भी एक होप आ गई है ना कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगी। की कोड्स की अगर इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात करते हैं। यहाँ पॉलिटिकल और इमोशनल रेस्टोरेशन है। जैसे फ्रांस की आर्मी कॉन्क्वेस्ट करने नहीं आई है, वॉर करने नहीं आई, वो जस्टिस के लिए आई है। लियर का इंटरनल जर्नी जो है, मतलब बाहर स्ट्रॉम के बाद, मतलब बाहर जो लिटरल स्ट्रॉम आया था वो शांत हो गया, लेकिन लियर का अंदर का स्ट्रॉम अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। कॉर्डेलिया की नोबिलिटी देखने को मिलती है हमको। सीन कॉर्डेलिया की एक सेंट लाइक फिगर को दिखाता, जो कि अनकंडीशनल लव और सेक्रीफाइस की बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब की कोट्स की बात करें तो आपको इस सीन 3 में, एक्ट 4 के सीन 3 में 26 से लेकर 27 लाइन पर ये कोट मिल जाएगी। फेथ, मतलब ये जेंटलमैन कहता है, फेथ वंस और ट्वाइस शी हीव्ड द नेम ऑफ फादर, पेंटिंग फॉर एज इफ इट प्रेस्ड हर हार्ट। तो यहाँ ये एक्सप्लेनेशन इसका ये हो गया कि कॉर्डेलिया अपने फादर लियर के नाम को इतनी दर्द से, इतने इमोशन के साथ बोलती है जैसे उसका दिल टूट रहा है। बोल रही है फादर, फादर, वो ऐसे बोलती है कि जैसे उसका दिल टूट रहा हो। ये उसकी अनकंडीशनल लव और इमोशनल सफरिंग को दिखाता है। जेंटलमैन का एक और डायलॉग है, ये 29 से लेकर 30 तक है। देयर शी शुक द होली वाटर फ्रॉम हर एवनली आइज। तो कॉर्डेलिया जो है, कॉर्डेलिया के आंसू को यहाँ पे हॉली वाटर बोला गया है। ये हॉली वाटर जो है ना, ये कॉर्डेलिया के आंसू है। ये उसके आंसू को हॉली वाटर कहकर उसकी प्योरिटी और इनोसेंस को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ये एक रिलीजियस इमेजरी भी है, जैसे टीयर्स एक ब्लेसिंग है, इस तरह से। अगला केंट का डायलॉग है, जो कि आपको 33 से लेकर 34 में मिलता है। इट इज़ द स्टार अबव अस गवर्न आवर कंडीशन। तो यहाँ पर केंट कहता है कि हमारी ज़िंदगी और डेस्टिनी पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये स्टार्स का है, और स्टार्स जो हमसे ऊपर है, मतलब डेस्टिनी की बात कर रहा है ये। मतलब वो कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी और डेस्टिनी पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बल्कि जो ऊपर सितारे हैं ना, स्टार्स हैं, ये उनका लेखा जोखा है सारा। मतलब वो हमारी कंडीशंस को गवर्न करते हैं। तो ये एलिजाबेथन बिलीफ सिस्टम है, मतलब एलिजाबेथन बिलीफ सिस्टम का एक मेजर थीम है कि फेट ओवर फ्री विल। फेट ही हमारी विल, हमारी डेस्टिनी होती है, फ्री विल जैसा कुछ नहीं होता। अब सीन 4 की बात करते हैं। तो सीन 4 में कॉर्डेलिया फ्रांस की, अच्छा इसका ये जो सेटिंग है, फ्रेंच कैंप है, ठीक है, फिर से वही है। यहाँ पर उसे अपने पिता लियर के मेंटल कंडीशन के बारे में पता चलता है कि भाई वो बहुत बीमार हो गए हैं, इमोशनली बहुत टूट गए हैं, और वो उनकी हेल्प करने के लिए एक्शन लेती है। डॉक्टर लियर के ट्रीटमेंट के लिए तैयार किए जाते हैं। कॉर्डेलिया लियर को ढूंढने के लिए सोल्जर्स भेजती है, क्योंकि ये भी नहीं पता ना वो है कहाँ। सीन के एंड तक एक सीरियस और इमोशनल टोन बन जाता है। लियर को सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, पर्सनल लव और केयर मिलने वाली है, वो भी किससे, अपनी बेटी से, ठीक है। यहाँ पर वॉर का एटमॉस्फेयर है, लेकिन वॉर होना नहीं है। मतलब आर्मी आई है, लेकिन वॉर के लिए नहीं आई है। वो लियर के जस्टिस के लिए आई है, लियर के मेंटल रिकवरी के लिए आई है, बैटल के लिए नहीं आई है। अगर हम इसके थीम की बात करें तो वही फिलियल डिवोशन है यहाँ पर। मतलब कॉर्डेलिया का लियर के लिए जो प्यार है और सेवा की जो भावना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसका लव अनकंडीशनल है,
उसका अलग मतलब वो जो इतनी बड़ी आर्मी लेके आई है वो रिवेंज या पावर के लिए नहीं लेकर आई है। मैडनेस एंड हीलिंग, लियर की मैडनेस का जिक्र बार बार हो रहा है और डॉक्टर्स के थ्रू ये होप दिखाया गया है कि लियर अब रिकवर कर सकता है। नेचर वर्सेस नर्चर, कॉर्डेलिया नेचुरल अफेक्शन और नर्चर, नर्चर होता है केयर का एम्बॉडीमेंट है, जबकि गॉनर और रीगन अननेचुरल क्रूएलिटी को दिखाती है। यहाँ पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, बैकग्राउंड में पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, मतलब फ्रांस वर्सेस ब्रिटेन, लेकिन वो एक्चुअल वॉर नहीं है। पर सीन का इमोशनल वॉर जो है वो कॉर्डेलिया का अपने पिता के लिए लड़ना ज़्यादा हाईलाइट होता है। नेक्स्ट है रिलीजियस इमेजरी एंड रिडेम्पशन, वो जो मैंने आपको बताया था कॉर्डेलिया के आंसू, होली वाटर का है ना उसको, तो वो रिलीजियस इमेजरी है। तो कॉर्डेलिया लियर के लिए प्रे भी करती है। सीन में प्योरिफिकेशन और रिडेम्पशन का मूड है। अब हम बात करते हैं की कोड्स की। तो इसी सीन में 24 से लेके 25 पर ये लाइन है, ओ डियर फादर इट इज़ दाई बिजनेस दैट आई गो अबाउट। सीन 4 में आपको ये मिल जाएगा। यहाँ कॉर्डेलिया कहती है कि वो अपने पिता लियर के लिए सब कुछ कर सकती है। यह बाइबलिकल रेफरेंस भी है, जैसे जीसस ने कहा था ना कि आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस, बोला था ना उसने, ऐसा बोला था उन्होंने, आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस। तो ये इट इज़ दाई बिजनेस दैट आई गो अबाउट, मतलब मैं आपके लिए आई हूँ। तो ये लियर और कॉर्डेलिया के रिश्तों की सेक्रेडनेस को भी हाईलाइट करता है। ठीक है, अब ये डॉक्टर की लाइन है जो कि 11 से लेकर 12 लाइन पर है। देयर इज मीन्स मैडम आर फॉस्टर नर्स ऑफ नेचर इज रिपोज विद द विच ही लैक्स, मतलब यहाँ पर डॉक्टर कहता है कि लियर की तबीयत सुधारने का एक ही तरीका है, वो है रेस्ट, रेस्ट कराया जाए उनको, जो जो वही लैक कर रहे थे वो। नेचर की ओरिजिनल नर्स जो है, मतलब आर फॉस्टर नर्स ऑफ नेचर इज़ रिपोज, मतलब हमारी जो नेचर की जो ओरिजिनल नर्स है वो है स्लीप। कई बार हमारी सिर्फ सोने से हमारी सेहत में काफ़ी सुधार आ जाता है। तो लियर की मैडनेस का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है लैक ऑफ स्लीप। अगर वो सो जाएंगे तो उनको बहुत आराम मिलेगा, वो बहुत रिलीफ फील करेंगे, उनका रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाएगी। अब ये कॉर्डेलिया का डायलॉग है जो कि 16 to 18 लाइन पर है। ऑल ब्लेस्ड सीक्रेट्स, ऑल यू अनपब्लिश्ड वर्च्यूज ऑफ द अर्थ, स्प्रिंग विद माई टीयर्स, बी एडेड एंड रेमिडिएट इन द गुड मैन्स डिस्ट्रेस। तो यहाँ पर कॉर्डेलिया अपने आंसुओं के साथ प्रकृति के सब सीक्रेट पावर से प्रार्थना करती है, मतलब आंसू उसकी आंखों में है, और नेचर के सब सीक्रेट पावर से, ऑल ब्लेस्ड सीक्रेट्स, मतलब दुनिया में जितनी भी ताकतें हैं जो इंसान को ऐसे आम तौर पे नहीं दिखती हैं, वो उन सबसे प्रार्थना करती है कि लियर को आराम मिले, उन्हें एक अच्छी नींद मिले। ये प्रे और डिवाइन इंटरवेंशन का मोटिव एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, मतलब ये बोल रही कि ऑल यू अनपब्लिश्ड वर्च्यूज ऑफ द अर्थ स्प्रिंग विद माई टीयर्स, मतलब अपने आंसुओं को वास्ता दे के प्रार्थना कर रही है। बी एडेड एंड रेमिडेड इन द गुड मैन्स डिस्ट्रेस, मतलब अपने फादर को गुड मैन बोल रही है कि भाई उनके लिए अच्छी नींद लेकर आओ जिससे कि वो जल्दी से रिकवरी कर जाए। ये 10 नंबर लाइन एक कॉर्डेलिया की, वो कहती है ही दैट हेल्प्स हिम टेक ऑल माई आउटवर्ड वर्थ। यहाँ पे कॉर्डेलिया अपनी सारी वर्ल्डली वेल्थ देने को तैयार है, कह रही ना, ही हैथ हेल्प्स हिम टेक ऑल माई आउटवर्ड वर्थ, मतलब सारी वेल्थ, मतलब सारी वर्ल्डली वेल्थ ले लो मेरी, सिर्फ इसलिए कि लियर को रिलीफ मिल सके। ये सेल्फलेस लव और सेक्रीफाइस का सबसे पावरफुल मोमेंट है, मतलब एक बेटी अपने फादर की अच्छी हेल्थ के लिए, उसकी रिकवरी के लिए अपना सब कुछ देने को रेडी है। तो ये जो सीन था 4, ये काफ़ी, इसका जो टोन था वो काफ़ी टेंडर है, इसमें होप है, इसमें इमोशनल अर्जेंसी है। ठीक है, पॉलिटिकल बैकड्रॉप भी है, लेकिन इमोशनल बैकड्रॉप लियर का रिडेम्पशन है, और कॉर्डेलिया लियर के मैडनेस और अपमान का उसको पूरा पता चल गया है, भाई बड़ा बुरा हुआ उसके फादर के साथ, और वो उसे सुधारने के लिए, ना कि पावर के लिए, अपनी आरपी लेकर आई है। लियर को रिक्लेम करने और हील करने का प्रोसेस यहाँ से ऑफिशियल शुरू होता है।
इस सीन से प्ले का टोन और ट्रेजेडी से रिडेम्पशन और स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ से मूव करता है। हम सीन 5 पर आ गए हैं। ये ग्लॉसेस्टर के कैसल में है, ठीक है, जो कि अब रीगन का प्लेस बन गया है फॉर पावर नाउ। इस सीन में रीगन, अगर हम प्लॉट की बात करें तो इस सीन में रीगन और ऑसवर्ल्ड का एक बहुत, ये काफ़ी छोटा सीन है। इसमें इन दोनों की ही एक कॉन्वर्जेसन होती है। रीगन पूरी तरह से पावर और जेलेसी में लिपटी हुई दिखाई देती है, क्योंकि ना उसको पता भी चल गया है कि सीन 2 में यहाँ पर ये इस बारे में पता चल गया। ये गॉनरेल और एडमंड की रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया इसको। तो ये भी बहुत ज़्यादा ये जेलस हो गई है। जेलस में ये जेलसी में लिपटी हुई दिखाई देती है। उसे पता चलता है कि गॉनरेल और एडमंड के बीच कुछ पर्सनल अटैचमेंट हो गया है और वो इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी इनसिक्योर फील करती है। रीगन ऑसवर्ल्ड को इंस्ट्रक्ट करती है कि अगर वो ग्लॉसेस्टर को कहीं भी देखे तो उसे तुरंत मार दे, क्योंकि ग्लॉसेस्टर अब लियर का सपोर्टर है और रीगन की पॉलिटिक्स के लिए थ्रेट भी है। साथ ही रीगन ऑसवर्ल्ड से गॉनरेल के प्लान्स और एडमंड के एक्शंस की भी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है। ऑसवर्ल्ड इसके लिए रेडी भी हो जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अपना एडवांटेज देख रहे हैं। पॉलिटिकल और पर्सनल बिट्रायल का थीम यहाँ और ज़्यादा उभर के सामने आता है कि अब रीगन जो है वो जेलेसी में है। वो कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि एडमंड उसके साथ हो, और वैसे भी उसके हस्बैंड नहीं रहे अब, लेकिन अब वो प्लान कर रही कि मैं अपनी सिस्टर के साथ कुछ करूं जिससे कि सब कुछ उसके पास जो मेरे पास आ जाए। सो थीम्स जो इसमें है, जेलेसी एंड राइवलरी। रीगन जेलस है गॉनरेल और एडमंड के बीच के रिश्तों को लेकर। पावर के लिए उनका पर्सनल राइवलरी और इंटीमेट जेलसी दिखाई देती है। ट्रेजेडी एंड मर्डर। यहाँ पर ट्रेजर मर्डर में रीगन ओपनली प्लॉट करती है कि ग्लॉसेस्टर को मारने के लिए तुम करो कुछ भी, जहाँ भी दिखे तुम्हें मार दे। और मर्डर और बिट्रायल एक एक्सेप्टेड पॉलिटिकल टूल बन गया है यहाँ पर। मतलब हमको अगर पावर चाहिए तो हमें किसी ना किसी को मारना पड़ेगा, और मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं इन लोगों के लिए। अगला है एम्बिशन एंड मैनिपुलेशन। यहाँ हर करेक्टर अपने पर्सनल मोटिव के लिए दूसरे को मैनिपुलेट कर रहा है, चाहे वो गॉनरेल हो, रीगन हो, ऑसवर्ल्ड हो, एडमंड हो, कोई भी हो। अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए, अपने पर्सनल मोटिव के लिए सब एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं। मोटिव्स यहाँ पर है साइट एंड ब्लाइंडनेस। सो ग्लॉसेस्टर अपनी ब्लाइंडनेस फिजिकल ब्लाइंडनेस पर है, और पर मॉरली अब सब कुछ सच देख पा रहा है। रीगन जैसे कैरेक्टर्स यहाँ फिजिकली देख सकते हैं, पर अंदर से मॉरली ब्लाइंड है। रीगन की जो साइट है वो काम नहीं कर रही। अब वो इतनी ज़्यादा अंधे हो गई है। इवन गॉनरेल भी, इवन एडमंड भी, इवन ऑसवर्ल्ड भी, ये इतने ज़्यादा ब्लाइंड हो गए अपने अपने फ़ायदे में कि इन्हें मॉरलिटी नाम की कोई चीज़ इनके पास है नहीं। अगला है पावर स्ट्रगल। पॉलिटिकल और पर्सनल दोनों फ्रंट्स पर वॉलेंट पावर स्ट्रगल चल रहा है। ये सीन पूरा एक इंटीमेट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी को दिखाता है। रीगन और गॉनरेल के बीच में छुपा हुआ राइवलरी जो था अब वो विजिबल है। ग्लॉसेस्टर लियर का सपोर्टर होने के नाते अब टारगेट पर है, क्योंकि रीगन उसको मरवाना चाहती है। मर्डर और पॉलिटिकल गेम्स ओपनली यहाँ पर की जा रही हैं विदाउट एनी मॉरल हेजिटेशन। शुरू में पहले एक्ट में, दूसरे एक्ट में सब चीज़ें छुप कर हो रही थी क्योंकि तब मॉरल हेजिटेशन थी, लेकिन अब नहीं है। लव, लस्ट, पावर के एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ घुल गए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सीन 5। अब है सीन 6। सेटिंग इसकी कंफर्म नहीं है, लेकिन समवेयर इन द किंगडम लियर मिलता है ग्लॉसेस्टर से। So, scene 6 of King Lear. The scene primarily takes place with the wilderness where Lear, accompanied by his followers, is wandering in the madness. He is in a disoriented and deranged state, reflecting the deep emotional and psychological toll with his daughter's betrayal has taken on him. The scene also features Edgar. Edgar भी है scene में, disguised as poor Tom, who helps Lear and Gloucester, who is blind and has also suffered greatly due to his son's tragedy. So, लियर की यह जो मैडनेस है ये भी यहाँ पर दिख रही है. Lear's descent into madness is fully realized here as he is increasingly disconnected from reality. He is accompanied by his fool, the fool, and the disguised Edgar,
and in this scene we see Lear's increased sense of vulnerability, confusion and rage. अब उसकी मीटिंग होती है ग्लॉसेस्टर के साथ, वो देखता है ग्लॉसेस्टर अब अंधा हो गया है, वो मिलता है उसको, इवन लियर उसको शायद नहीं पहचान पाता लेकिन ग्लॉसेस्टर उसको पहचान जाता है डिस्पाइट हिज ओन ब्लाइंडनेस, एंड देयर इज इमोशनल एक्सचेंज बिटवीन देम. एडगर का जो रोल है यहाँ पर पुअर टॉम, एज पुअर टॉम भी दिखाते हैं यहाँ पर. ही कंटिन्यूज टू प्ले अ पिवटल रोल इन हेल्पिंग लियर, ऑफरिंग हिम कंफर्ट इन द फेस ऑफ हिज deteriorating mental state. This scene highlights Lear's fall from power and devastating consequences of his decision, but it also brings forward themes of compassion, loyalty and nature of suffering. So थीम की अगर हम बात करें, बैडनेस एंड आइडेंटिटी यहाँ पर है. लियर की जो बैडनेस है वो प्रोमिनेंट थीम है यहाँ पर. हिज इनएबिलिटी टू डिस्टिंग्विश रियलिटी फ्रॉम इल्यूजन reflects his complete disintegration. His sense of identity is shattered as he grapples with the loss of his kingdom and the betrayal of his daughters. His speech often veers into nonsensical statement, underscoring his mental breakdown. जैसे ये ना किंग लियर कहता है आई एम अ मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिन. तो यहाँ पर लियर की सेल्फ अवेयरनेस दिखती है कि वो बुराई से भी ज़्यादा बहुत बुरा है, उसने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, लेकिन वो खुद को विक्टिम भी समझ रहा है क्योंकि ये क्रूशियल एलिमेंट है उसकी बैडनेस का. सेकंड यहाँ पर है द सफरिंग ऑफ इनोसेंट. सो बेसिकली ये जो सीन है इसमें लियर और ग्लॉसेस्टर दोनों ही अपने अपने बच्चों के एक्शन की वजह से सफ़र कर रहे हैं. Gloucester physical blindness parallels Lear's emotional blindness, and they both are deceived and betrayed by their own children. तो दोनों ही blind हो चुके हैं. So next है revenge and justice. Lear's and Gloucester's suffering suggests a focus on the idea of justice in the play. Lear जो है वो constantly pondering कर रहा है in the fairness of his situation, while Gloucester seeks to right his wrongs. वो अपने जो उसने गलत किया है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है. However, the tragic reality is in the scene is justice never truly served, and the suffering of both men continues. तो लियर जो मतलब यहाँ पे दोनों के साथ ही दोनों के मन में है रिवेंज लेने का एक है फीलिंग, और क्योंकि इनको जस्टिस चाहिए ना. अगला है लॉयल्टी वर्सेस बिट्रायल. सो दिस विल ऑल्सो फोकस ऑन द थीम ऑफ लॉयल्टी. एडगर जो कि डिस्गाइज है एज पुअर टॉम, ये मेन एबॉडीमेंट है लॉयल्टी का, एज ही रिमेन्स फेथफुल टू हिज फादर ग्लॉसेस्टर डिस्पाइट द लेटर्स बिट्रायल ऑफ लियर. ये जो लॉयल्टी है ये कंट्रास्ट करती है शार्पली विद द डिसलॉयल्टी ऑफ रीगन, गॉन्डल एंड एडमंड. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर द रोल ऑफ नेचर. The nature is a recurring motif in the King Lear. Here it becomes evident through the harshness of the storm and through that is Lear is facing मतलब जो हार्शनेस है स्टॉर्म की वो लियर फेस कर रहा है. जो वॉयलेंस है इस एलिमेंट का रिफ्लेक्ट करता है लियर के इंटरनल और इमोशनल मतलब लियर के इंटरनल इमोशनल स्टॉर्म में. क्रूशियल एनवायरनमेंट जो मिरर करता है द हार्शनेस ऑफ द वर्ल्ड दैट लियर नाउ फेसेस. तो ये यहाँ पर रोल ऑफ नेचर इतना ही है कि लियर जो है वो काफ़ी हार्शनेस फील कर रहा है, मतलब दुनिया की हार्शनेस फील कर रहा है जब उसको धीरे धीरे सच्चाई का पता चल रहा है. अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सीन के इस एक्ट के, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पर कॉर्डेलिया फाइनली अपने फादर से मिल लेती है. सेटिंग यहाँ की रीगन पैलेस है, रीगन के पैलेस की है. द सीन टेक्स प्लेस इन रीगन्स कैसल. It follows the tragic events of Gloucester blinding and Lear's madness, as well as the continued conflict between the different factions vying for power. So यहाँ पर दोनों फादर और डॉटर का रीयूनियन होता है और दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इसमें. सो बेसिकली ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है. लियर की रिकवरी यहाँ पर हो रही है. दिस इज़ द सीन वेयर लियर बिगेन्स टू रिगेन हिज सैनिटी आफ्टर हिज इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग.
ही इज रीयूनाइटेड विथ कॉर्डेलिया। ये जो मोमेंट है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पर बिकॉज इट मार्क्स लियर्स रिटर्न टू रीजन एंड इनसाइट। ग्लॉसेस्टर का रिडेम्पशन भी है यहाँ पर। ग्लॉसेस्टर इज ऑल्सो अ कैरेक्टर हु फाइंड्स रिडेम्पशन आफ्टर enduring his cruel punishment. He is brought to Cordelia's camp where he reconciles with Lear. अब कॉर्डेलिया की यहाँ पर केयर देखने को मिलती है। कॉर्डेलिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग बोथ लियर एंड ग्लॉसेस्टर। शी रिप्रेजेंट्स लव, compassion and forgiveness, and offering a sharp contrast to the cruelty of her sister. केंट की लॉयल्टी यहाँ देखने को मिलती है। केंट जो कि डिस्गाइज एज केस continues to be a loyal servant to Lear and supported him during his time of need. हम थीम्स की अगर यहाँ बात करें तो रिकन्सिलिएशन और रिडेम्पशन है यहाँ पर। मतलब लियर का रीयूनियन हुआ है कॉर्डेलिया से, ये सिम्बलाइज करता है कि अभी भी पॉसिबिलिटी है रिडेम्पशन की और फॉरगिवनेस की। दिस मोमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन गिव्स अ फ्लीटिंग सेंस ऑफ होप। ये शो करता है दैट इवन इन द वर्ल्ड फिल्ड विथ क्रुएल्टी सफरिंग लव कैन स्टील हील वुंड्स। मतलब चाहे कितनी ही बुराइयाँ हों वर्ल्ड में, लेकिन प्यार जो है, केयर जो है, वो अब इन वुंड्स को जो उसको क्रुएलिटी ने दिए हैं, उसकी दोनों बेटियों की क्रुएलिटी ने, उनकी सेल्फिशनेस ने जो उसको सफरिंग दी है, उसे उसकी जो सबसे छोटी बेटी है कॉर्डेलिया अपने लव से हील कर सकती है। अगला है रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। This scene represents a brief moment of emotional calm in the play, with Lear beginning to recover mentally and emotionally. However, it's important to note that this moment of peace. However, it's important to note this moment of peace is short-lived, as the play moves towards its tragic conclusion. ऐसा नहीं कि अभी एंड हो गया है, अभी एक और एक्ट है हमारे पास, उसमें तो ज़्यादा ट्रैजिक कंक्लूजन आएगा। तो ये लेकिन जो ये बहुत ही कम टाइम पीरियड है, बहुत छोटा सा टाइम है, ये मोमेंट ऑफ पीस का है, जिसे ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही है। कैरेक्टर्स तो कर ही रहे हैं, सारे कैरेक्टर्स, मतलब जो अच्छे वाले कैरेक्टर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, वेदर इट इज़ केंट और पुअर टॉम एडगर और ग्लॉसेस्टर और लियर, कॉर्डेलिया, सब एक जगह इकट्ठे हो गए। अगला है पेरेंटल लव एंड फिलियल ड्यूटी। तो लियर और कॉर्डेलिया का रिलेशनशिप जो है इज सेंट्रल हेयर। लियर्स अर्लियर रिजेक्शन ऑफ कॉर्डेलिया इज नाउ रिवर्स्ड, और जो उनका रीयूनियन है वो हाईलाइट करता है थीम ऑफ पेरेंटल लव को, फॉरगिवनेस को एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ फैमिलियल डायनामिक्स को। कॉर्डेलिया की फॉरगिवनेस और केयर जो लियर के लिए, वो उसकी फिलियल ड्यूटी को एम्फसाइज करती है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ सफरिंग। दिस सीन कंटिन्यूज द एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन सफरिंग दैट रन्स थ्रू आउट द प्ले। लियर्स जर्नी फ्रॉम मैडनेस टू रिकॉग्निशन रिफ्लेक्ट द ह्यूमन कंडीशन मार्क्ड बाय पेन, इंसाइट एंड इवेंचुअल रियलाइजेशन ऑफ व्हाट ट्रूली मैटर्स। की कोड्स की अगर हम बात करें तो इस 7th सीन में 44 लाइन पर आपको ये डायलॉग मिल जाएगा कॉर्डेलिया का, जो वो लियर से कहती है, हाउ डज माई रॉयल लॉर्ड, हाउ फेयर्स योर मेजेस्टी। जब ये उससे ढूंढ रही होती है ना कॉर्डेलिया लियर को, तब मतलब जब मिलती है सॉरी, तब वो कहती है। सो दिस लाइन शोज कॉर्डेलियाज डीप कंसर्न फॉर हर फादर्स हेल्थ एंड वेल बींग। शी हैज़ जस्ट फाउंड लियर आफ्टर ही हैज़ बीन wandering in madness, and her question signifies both her love and duty toward him. This moment of tenderness is a turning point in their relationship, highlighting the theme of forgiveness and unconditional love. Next जो लियर का डायलॉग है, जो कि 10 नंबर की लाइन है, सॉरी 60 नंबर की लाइन है ये। तो यहाँ पे लियर कहता है, बेचारा बहुत ज़्यादा गिल्ट में, अब तो बेचारा ही बोलेंगे इसको हम, ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में होता है ये, आई एम अ वेरी फुलिश फॉन्ड ओल्ड मैन। तो लियर एक्नॉलेजेस हिज मिस्टेक्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन हिज फुलिशनेस।
This self-aware moment marks a turning point for Lear, where he accepts his errors, his mistakes, especially his treatment of Cordelia and his rash decisions to banish her, to inherit her. It shows his vulnerability and foreshadows his ultimate redemption, which will be both emotional and tragic. ये 5th नंबर की लाइन, 15th लाइन है ये. कॉर्डेलिया कहती है, अलास डियर फादर, आई एम सो वीक. ग्लॉसेस्टर यहाँ पर, सॉरी पहले ये डिस्कस करिए. अलास डियर फादर, आई एम सो वीक. एक और बार बताइए. तो यहाँ पर कॉर्डेलिया के जो वर्ड्स है वो रिफ्लेक्ट करते हैं द ओवरवेलमिंग इमोशन दैट शी इज़ एक्सपीरियंसिंग एज शी रिकनसाइल्स विथ हर फादर. शी इज़ इमोशनली फ्रजाइल, सीइंग द vulnerability in her father, and this line signifies the depth of her care for him. It represents the theme of family bonds and emotional fragility. अब ये आगे ग्लॉसेस्टर की लाइन है. जब ये इसको मिलता है ना, मतलब जब ग्लॉसेस्टर को लियर जब मिलता है तो ये इसको बोलता है कि भाई मतलब मैंने बहुत कुछ बुरा किया है. तब इसको कहता है, आई सी यू आर अ नोबल एंड ग्रेट हार्टेड मैन. तो ग्लॉसेस्टर हु हैज़ ऑल्सो सफर्ड ग्रेटली स्पीक्स दिस लाइन टू केंट. केंट को कहता है ये लाइन. रिकग्नाइजेज द नोबिलिटी एंड लॉयल्टी ऑफ केंट्स एक्शन. ये लियर को नहीं कहता, सॉरी, ये जो लाइन है ये केंट को कहता है कि तुम बहुत लॉयल रहे हो हमेशा से. मैंने तुम्हारा नोबल और ग्रेट हार्ट मैन, तुम्हारे जैसा, मतलब मैंने तुम्हें देखा है कि तुम बहुत ही नोबल पर्सन हो, तुम बहुत ही ग्रेट हार्टेड पर्सन हो, मतलब तुम हमेशा लॉयल रहे हो. दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ म्यूचुअल रिकग्निशन वेयर ग्लॉसेस्टर acknowledges the good qualities in others despite suffering he has endured. मतलब अब जो है सब अच्छा देख रहे हैं सबके अंदर. पहले सब बुरा देख रहे थे, अब सब अच्छा देख रहे हैं. एट द एंड ग्लॉसेस्टर को भी फील हो गया कि केंट तो हमेशा से ही लॉयल रहा है, और उसके पास हिम्मत भी रही थी कि वो सच बोले, इसी वजह से उसको भी बैनिश किया गया. लेकिन वो इतना लॉयल था कि वो डिस्गाइज करके आया ताकि वो अपने किंग को फिर भी सर्व कर सके. So this is all about Act 4. So Act 4 marks a crucial turning point in King Lear, where the emotional and psychological development of the characters reaches a crescendo. This act deals with the themes of redemption. यहाँ पे redemption हुआ है. दूसरा यहाँ पे recognition हुआ है past wrongs का, कि भाई हमने जो भी किया वो गलत किया, चाहे वो ग्लॉसेस्टर हो चाहे वो लियर हो, दोनों ने रिकग्निशन किया कि हमने पहले बहुत गलतियाँ की हैं. एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिट्रायल को भी यहाँ का थीम किया गया है इसको. लियर्स जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ अवेयरनेस एंड ह्यूमिलिटी इज पॉग्नेंट as he acknowledges his mistakes and experiences the pain, and this is the painful process of reconciliation with his daughter Cordelia. Their reunion is bittersweet, representing the power of love but also the tragedy of their lost years and the fragility of human excellence. Meanwhile, the subplot involving Gloucester reveals the harshness of human cruelty and the blind nature of fate as Gloucester endures physical and emotional torment. His eventual recognition of the nobility in others, particularly Kent, underscores the play's theme of loyalty and honor. ये जो act था, it also sets the stage for the looming tragedy of the final act. फाइनल एक्ट जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, उसको भी इसने स्टेज किया है. ग्रोइंग टेंशन बिटवीन लियर, रीगन एंड गॉर्डन एज वेल एज डिटेरियोरेटिंग पॉलिटिकल सिचुएशन लीड्स टू अ हाइटेंड सेंस ऑफ फोरबॉडिंग. अब यहाँ पे एक्ट 4 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मार्क्ड विद द मोमेंट्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ, ट्रेजिक आयरनी, डीप सेंस ऑफ लॉस दैट प्रोपेल्स द नरेटिव टुवर्ड्स इट्स ट्रेजिक कंक्लूजन. अब कल हम जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तब हम एक्ट 5 पढ़ेंगे, जो कि लास्ट एक्ट है इसका. उसमें भी वो थोड़ा छोटा है, एक्ट 4 जितना बड़ा नहीं है. और उसी के साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बीए और एमए में भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास उन सब के लिए जिनके सिलेबस में किंग लियर है. सो थैंक यू सो मच.